Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be doing good. I am Fawad Ahmed, your science teacher. Previously, I have sent you the exercise of the last chapter. I hope you have written it in your notebooks. And also you have done your assignments. I hope so. Today we will start new unit 8, atoms. So let's start. Atoms and elements. First of all, we will go at the beginning how atom was discovered and what is atom. Matter is composed of tiny particles called atoms which cannot be seen by naked eye but only through powerful microscope. So matter को अगर हम इनडिविजिबल फॉर्म में डिवाइड करते हैं, अगर उसको हम इतना छोटा बारीक कर देते हैं जो हमें आंख से नज़र नहीं आता और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से हमें वो जर्रे नज़र आते हैं तो उसे एटम कहते हैं. Element. A material that is made of one type of atom is called element. So far 117 elements have been discovered by scientists. Copper, sodium. अब जब एक तरह के बहुत से एटम इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे एलिमेंट बनता है. अभी तक साइंटिस्ट ने 117 एलिमेंट डिस्कवर किए हैं जिसमें कॉपर है, सोडियम है, एटसेट्रा. Discovery of atom. A Greek philosopher Democritus 460 to 361 BC first put forward the idea of atoms. He ground up different materials until he had a fine powder which could not broken down any smaller. Atom is the ancient Greek word for indivisible. सबसे पहले डेमोक्रेटस जो था 460 से 361 BC के दौरान उसने ये आइडिया दिया कि जो उसने मैटर को, किसी मटेरियल को पाउडरी शेप में कन्वर्ट किया जिससे वो और डिवाइड नहीं हो सकता था, तो उसने उसका नाम एटम रखा. तो ग्रीक वर्ड है ये एटम और ग्रीक में इसके माने इंडिविजिबल से ये निकला. इंडिविजिबल मीन जो और डिवाइड ना हो. In 1808 an English chemist John Dalton suggested from the experiment he had carried out that each chemical element is made up of different atoms and that elements are different because they are made of different atoms. फिर 1808 में एक इंग्लिश केमिस्ट था. इंग्लिश केमिस्ट मीन कि उसका ताल्लुक इंग्लैंड से था, लंदन या बरतानिया से उसका ताल्लुक था. ये एक केमिस्ट था. तो उसने ये थ्योरी सजेस्ट की कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स मुख्तलिफ एटम से बनते हैं लेकिन हर एक एलिमेंट में एक तरह के एटम्स होते हैं. In 1911, the New Zealand-born physicist Ernest Rutherford discovered that atom have a tiny dense nucleus. 1911 में न्यूजीलैंड का एक फिजिस्ट था जो फिजिक्स का एक्सपर्ट होता है, उसने ये डिस्कवर किया कि एटम के अंदर एक डेंस न्यूक्लियस है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है. Inside atom. Atom is made up of even smaller particles. If we could pull an atom apart, we would see that it is made of three important particles. These are called protons, neutrons, and electrons. Different atoms are made up of different numbers of these three particles. Every atom contains usually made up of proton, neutrons. Electron move rapidly around the nucleus. अब एटम की जो स्ट्रक्चर है आप राइट साइड पे देख सकते हैं, तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द घूमती है शेल्स में. ये अब जिसका रास्ता है उसे शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं. तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. जैसे कि एलिमेंट की तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उसमें हमारे पास 117 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं. सो some of these are very rare, some are man-made, while other elements such as copper, sodium, and chlorine are common. Atoms differ from one another because they are made of different numbers of protons, neutrons, and electrons.
The smallest atom of all of the gas is hydrogen. This has only one proton and one electron. The largest naturally occurring atom that we know about is uranium. This has about 92 protons and 92 electrons. It is the number of protons that makes the difference between the atoms. अच्छा, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी तक 117 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, तो ये एलिमेंट किस तरह 117 है, इसको नंबरिंग किस तरह दी हुई है, तो ये उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है मोस्टली, तो इसलिए हम इसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इसमें हम एटम की फीचर बताते हैं कि ये किस नंबर पे होगा। सबसे जो छोटा एलिमेंट है हमारा वो हाइड्रोजन गैस है, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। फिर सबसे जो लार्जेस्ट एटम है वो यूरेनियम का है, जिसमें 92 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन की तादाद इससे ज़्यादा है। अभी तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 136 के आसपास है, न्यूट्रॉन्स की तादाद, लेकिन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इसमें 92 है यूरेनियम में। तो इसकी बिना पर ये एलिमेंट एक दूसरे से डिफर है। इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल। Electron and shells drawings of atom usually show electron orbiting the nucleus rather like planet orbiting the sun. Electrons are not solid ball but bundles of energy that move almost as fast as light. Electrons revolve around the nucleus of the atom in different layers called shell. These shells are arranged around the nucleus of atom in energy level. तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया, जब मैंने आपको फिगर दिखाई थी कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होते हैं उसको कहते हैं, उसको दूसरे नाम ऑर्बिट भी कहते हैं या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उसमें मूवमेंट करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और ये लाइट की तरफ फास्ट मूव करते हैं एनर्जी के ज़रिए। मैं आपको दोबारा वो स्लाइड दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जो रेड लाइन्स हैं ये शेल है या ऑर्बिट्स है जो आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। Electrons and shell. The near a circle to the nucleus, the lower of the energy level, the lowest energy shell. The one nearest to the nucleus is called a K shell. It can hold either one or two electrons. The second shell with the second energy level is called the L shell. It can hold up to 8 electrons. The third energy level, the M shell, can also hold a maximum of 8 electrons. अब ये शेल्स जो होते हैं, जो शेल न्यूक्लियस के करीब होता है इतना वो कमज़ोर होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। सबसे पहला जो शेल होता है न्यूक्लियस के करीब वो के शेल होता है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या एक, इससे ज़्यादा नहीं होते। दूसरे शेल को एल शेल कहते हैं और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 से कम। तीसरी शेल में भी 8 या 8 इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर फोर्थ शेल को एन शेल कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने ज़्यादा हो सके। अभी तो हम लेवल अप का इतना नहीं है, लेकिन जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो इसका फिर एक फार्मूला है 2n², जिससे आप शेल की इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। n की जगह आप अगर नंबर ऑफ शेल पुट करें और उसकी स्क्वायर लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन जस्ट अपने अभी इसके नाम सीखने हैं कि के शेल, एल शेल, एम एंड एन, कि के कौन सा होगा, एल और एम और एन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इसकी डिपेंड करता है इसकी एनर्जी लेवल पे कि इसमें कितनी एनर्जी है इस शेल में। filling electron levels. Filling electron level is an atom. The electron fill the energy level starting from the lowest energy. When this is full with 2 electrons, the next electron goes to L shell. When L shell is full with 8 electrons, the electron begin to fill the M energy level. As there are always the same number of protons and electrons in an atom, the atomic number also tell us how many electrons in an atom has. Carbon, for example, has an atomic number of 6. It has 6 protons and 6 neutrons in its nucleus, and 6 electrons orbiting the nucleus. 2 of these electrons will occupy the K shell, while other remaining will अगर 4 लेट द एल शेल। अच्छा, अब हम ये फिलिंग किस तरह होती है इनके शेल्स के। लेट सपोज हम स्टार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 2 से ज़्यादा होंगे तो एल शेल में होंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं लूँगा कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 में से 2 तो के शेल में चले गए जो पहला है, तो इससे 4 रह गए, तो 4 इसके दूसरे शेल में होंगे, फिर जो एल शेल है।
तो इस तरह से ये लेवल्स बनते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में फिर 16, इस तरह हम आगे जाते हैं। फिर नहीं सॉरी, तीसरे में 18 तो इस तरह के शेल बनते हैं इसके। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है सोडियम की। A slightly more complicated example is that of the sodium atom. It has the atomic number of 11 and atomic mass of 23. Thus, each sodium atom consists of 11 protons, 12 neutrons, and 11 electrons. In this sodium atom, there are 2 electrons in K energy shell, 8 electrons in the L energy shell, and the remaining 1 electron in the outermost M shell. The electron arrangement for the sodium atom is। अच्छा, यहाँ पर अब एक डिफरेंट एग्जांपल आ गई सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास इसका 23 है। इट मीन्स कि इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो हमेशा सेम होगी। तो 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, बट न्यूट्रॉन लेवल इज़ 12। लेकिन यहाँ पर हम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें कितने प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में चले गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में चले गए, तो इसमें कितने हो गए, 10। तो एक बच गया, तो जो तीसरी शेल एम शेल में जाएगा, जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है 281। सो दिस इज़ द कन्फिगुरेशन ऑफ सोडियम के 2 पहले शेल में जाएंगे, 8 दूसरे में जाएंगे और एक एम जो है तीसरे। ये थोड़ा सा एडवांस हो गया है यहाँ पर बुक में, लेकिन यहाँ भी क्लास 9 में जाके केमिस्ट्री में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब आप पीरियोडिक टेबल और वो चीज़ें पढ़ेंगे। अब बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के शेल्स और उसकी कन्फिगुरेशन दी हुई है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट में एलिमेंट है, फिर सिंबल है, फिर एटॉमिक नंबर, फिर इलेक्ट्रॉन्स, फिर शेल, सेकंड शेल, थर्ड एंड फोर्थ शेल। तो आप शुरू करें हाइड्रोजन से, तो उसमें एक एटॉमिक नंबर है उसका, तो उसका एक शेल है। हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है, तो उसके 2 शेल, वो फर्स्ट शेल में ही कंप्लीट हो रहा है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ गए, एक दूसरे में। तो आप ये सारे देख सकते हैं जितनी एलिमेंट्स है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 या 15 से ज़्यादा, सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा है, जितना तो उसके इतने ही ज़्यादा शेल बन रहे। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 से ज़्यादा है तो उसके तीसरा शेल भी बन रहा है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 से भी ज़्यादा है तो उसका चौथा शेल भी बन रहा है। तो इस तरह की इसकी कन्फिगुरेशन होती है। अच्छा, आई होप आप लोगों ने पिछले असाइनमेंट किए होंगे। तो आज आपका असाइनमेंट है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन साल्ट सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक फार्मूला है साल्ट का, जो नमक होता है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आप लोगों ने ये फाइंड आउट करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का, अगर आपको समझ आ गया हो। व्हाट इज़ द सिंबल यूज्ड फॉर द लास्ट शेल। तो लास्ट शेल के लिए कौन सा सिंबल हम यूज़ करते हैं, जो हमने ऑलरेडी बताया, KLMN या जो भी हो। तो आप लोगों को लेक्चर से समझ आए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।